बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये CSS 2019 करंट अफेयर का टॉपिक था। क्वेश्चन आया था, हाउ कैन द करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बी मेड पार्ट ऑफ गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन को आज हम अटेम्प्ट करेंगे और इसी टॉपिक पे आपको ब्रीफ करेंगे। हाउ कैन द करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बी मेड पार्ट ऑफ गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम करप्शन इन पाकिस्तान को जनरली ओवरव्यू करेंगे। Defining corruption. Transparency International defines corruption as the abuse of interested power for private gain. Corruption as per religious teachings. There is a hadith, words of Holy Prophet, peace be upon him, whose interpretation is that both the person who give and who accept bribe will go to hell in the life hereafter. जिसको अब अरबी में कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। There is an Islamic concept of halal and haram which mean earning livelihood through fair and unfair means respectively. Islam has approved halal and declared earning halal as worship. Rizq halal and ibadat hai. On the other hand, earning haram is a big sin. Corruption falls in the category of haram. Corruption was referred to as great sin already in the Bible. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? जब भी आप करप्शन की दुनिया में बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रेफरेंस लाजमी आएगा। इट इज़ ए जर्मन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1993, based in Berlin, working in over 100 countries to end the injustice of corruption. It is the mission to stop corruption and promote transparency, accountability, and integrity at all levels and across all sectors of society. It uses the CPI. CPI means Corruption Perception Index as a measure of corruption. What is Corruption Perception Index? An index published every year by Berlin-based Transparency International since 1995. हर साल 1995 से लेकर आज तक ये इंडेक्स पब्लिश होता है। The 2020 CPI published in January 2021 ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption as determined by expert assessment and opinion surveys based on the situation between May 2019 and May 2020. अगर 2020 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है तो वो 2019 की मई से लेकर मई 2020 तक का रिकॉर्ड होगा। It uses a scale from 0 to 100 where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. इसमें आप देख सकते हैं, according to corruption perception index of 2020 published by Transparency International, following countries are the cleanest. न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, मीनिंग देयर बाई यहाँ पे करप्शन सबसे लोएस्ट है। और दुनिया के सबसे जो द मोस्ट करप्ट नेशंस हैं वो सोमालिया है, इसके 12 पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स हैं सीरिया के, साउथ सूडान है, यमन है। तो ये उनके जो रैंकिंग है 0 से 100 तक, यानी उनको जो मार्क्स मिलते हैं ये इनके कम से कम मार्क्स हैं, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया और यमन। अब हम आते हैं रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान स्टैंड्स एट 124 with 31 points as per 2020 CPI Corruption Perception Index. First position is the cleanest of all. The lower a country is placed on the index, the more corrupt it is. तो हमारा 124वां नंबर है। According to CPI 2019, पाकिस्तान की पोजीशन 120th थी। 2018 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे 117 थी और 1996 में पाकिस्तान वाज द सेकंड मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 117, 120 और अब 124 पे, इसका मतलब ये है कि करप्शन का जो परसीव्ड लेवल है वो पाकिस्तान में इंक्रीज कर रहा है।
The report of Transparency International was a source of great embarrassment for Pakistan, as it had not only tarnished the country's image but also discouraged foreign donors to support Pakistan in its development projects. वो क्यों सपोर्ट करेंगे जब उनको पता है कि ये मुल्क यहाँ पे करप्शन हो रही है और पैसा वहाँ पे नहीं जाएगा जहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बल्कि रास्ते में ही इसको खा लिया जाएगा, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। When the culture of greed resulting into taking commission from foreign companies and agencies deepened, the trust and confidence of the world on Pakistan and its institutions has diminished. According to Transparency International survey, there was a widespread corruption in Pakistan from 195 billion rupees in 2009 to 223 billion rupees in 2010. 195 बिलियन रुपीस थी करप्शन का लेवल 2009 में, और ये 2010 में चला गया 223 बिलियन रुपीस तक। ये है जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे करप्शन, परसीव्ड लेवल ऑफ करप्शन जो है वो ज़्यादा है, जिसमें जो करप्ट इंस्टीट्यूशन हैं पाकिस्तान के, वो पुलिस है, पावर सेक्टर है, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशंस हैं, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, हेल्थ एंड टैक्सेशन। करप्शन की बहुत सारी किस्में हैं। पब्लिक सर्वेंट्स डिमांडिंग और टेकिंग मनी और फेवर इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज। वो सर्विसेज जो उनकी ड्यूटी में शामिल है, उन सर्विसेज को देने के बदले में वो डिमांड करते हैं, पैसे लेते हैं, फेवर्स लेते हैं। पॉलिटिशियंस मिसयूजिंग पब्लिक मनी और ग्रांटिंग पब्लिक जॉब्स और कॉन्ट्रैक्ट टू देयर स्पॉन्सर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और इवन टू देयर वोटर्स, जो उनसे उनके बदले में, जो अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लिए हैं और कुछ लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, तो आप उनको कोई उनकी राइट्स नहीं देते, बल्कि उनको ही सारा डेवलपमेंट देते हैं जहाँ पे आपको वोट मिले हैं। तो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ करप्शन। और फिर कॉर्पोरेशंस ब्राइबिंग ऑफिशियल्स टू गेट लिक्विडेटिव डील्स। जैसा कि हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देती हैं कि वो डॉक्टर्स उन्हीं की जो मेडिसिन हैं उनको रिकमेंड करें, उन्हीं की ब्रांड्स को। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें बहुत अहम है कि आप एक सीट पे बैठे हुए हैं और आप एक ऐसा बिजनेस भी कर रहे हैं और उसी बिजनेस को आप डील कर रहे हैं, जबकि उसी बिजनेस में आपका शेयर भी है, तो साफ ज़ाहिर है आप आपका जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो आप फिर, ये भी करप्शन है जिसमें आप अपनी जॉब सही तरीके से कर नहीं सकते। अब हम आते हैं पाकिस्तान में करप्शन के पीछे रीजंस क्या-क्या हैं। सबसे पहली पॉइंट ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन पॉलिटिसाइज्ड हैं। जब इंस्टीट्यूशन पॉलिटिसाइज्ड होते हैं तो जो पोस्टिंग है वो पॉलिटिकल हो जाती हैं, और पोस्टिंग पॉलिटिकल होने का मतलब ये है कि मेरिट पे फिर अपॉइंटमेंट नहीं होती, और उसमें फिर आप जब एक ऑफिसर पोस्टिंग लेता है पॉलिटिकल बॉसेस से, तो फिर उनको फेवर भी देता है, और जब वो उनको फेवर देता है तो खुद भी फेवर लेना शुरू कर देता है। तो ये भी एक करप्शन की वजह है। फिर लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ है, जब एक ऐसा कल्चर है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, फिर आप जब डिस्क्रेशन बढ़ती है तो फिर आप उसमें करप्शन का स्कोप बनता है। फिर एक और अहम पॉइंट ये है कि फंड्स टू रन दी ऑफिशियल बिजनेस आर नॉट प्रोवाइडेड टू दी फील्ड स्टाफ एंड यूनिट्स। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ कि एक थाना है, पुलिस स्टेशन है, हम परसीव्ड लेवल ऑफ करप्शन बहुत ज़्यादा है थाने में, बट क्या कभी किसी ने इस बात पर सर्च की है कि एक थाने को कितना फंड मिलता है एक थाने के तमाम अखराजात चलाने के लिए, जो कि जायज़ कानूनी अखराजात हैं। तो उसको जो फंड मिलता है वो बहुत लिमिटेड होता है, इवन उनका पेट्रोल भी पूरा नहीं होता, और वो दे हैव टू डू पेट्रोलिंग, और इस तरह के बहुत सारे अखराजात होते हैं जो जब उनको नहीं मिलते तो वो उन अखराजात को पूरा करने के लिए भी वो करप्शन करते हैं। इवन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन कास्ट जो है वो शुरू में नहीं मिलती, हालांकि असूल तो ये होना चाहिए कि उसको शुरू में, जब वो केस हो, लेट्स से एक मर्डर केस हुआ है, तो उसको पैसे फौरी मिल जाने चाहिए, बट वो पहले केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा, खर्चा पहले करेगा, फिर बाद में उसको उसमें फंड्स मिलते हैं, और वो भी बहुत कम मौके पे मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में हम एक करप्शन को जो है इंसेंटिवाइज़ करते हैं, करप्शन को इनकरेज कर हमारा सिस्टम इनकरेज कर रहा होता है। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत सारी डिस्क्रेशन अवेलेबल है। उनके डिस्क्रेशन होती है, किसी का मिसाल के तौर पर टैक्स ऑफिसर्स हैं, तो उनको डिस्क्रेशन है कि उनके पास वेवर्स की ऑप्शंस हैं। अब एक बंदे को उन्होंने टैक्स लगाया लेट्स से 1 मिलियन रुपीज़, और अगर वो बंदा कहता है कि आप हमारा टैक्स माफ़ कर दें और हम आपको 5 लाख रुपए दे देते हैं, तो ये एक किस्म की करप्शन को इनकरेज करने वाली बात है। डिस्क्रेशन मिनिमम होनी चाहिए।
फिर इसमें आगे आ जाता है पॉइंट के सैलरीज कम है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है। जब आप उनको इख्तियारात बहुत ज़्यादा देते हैं, डिस्कशन उनके पास बहुत ज़्यादा है, सैलरीज उनके पास बहुत कम है, और पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो डील करते हैं एक ऐसी क्लास के साथ जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा एलीट है, तो अल्टीमेटली वो अपने लाइफस्टाइल को अप रखने के लिए भी करप्शन की तरफ आ जाते हैं और इस बात को एक्सक्यूज बनाते हैं कि उनकी सैलरीज बहुत कम है। फिर पुअर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स है, यानी करप्शन की जो पनिशमेंट है वो दो के सवियर हैं बट वो सर्टन नहीं है। हमेशा पनिशमेंट की या अकाउंटेबिलिटी की ये थ्योरी होनी चाहिए कि पनिशमेंट शुड बी सर्टन, इट्स if it is not severe then it's okay. It is not the severity that matters, it is certainty that matters. Now we come to the point repercussions of corruption in Pakistan. इसके क्या क्या असरात होते हैं। सबसे पहला असरात ये होता है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी डिस्टर्ब होती हैं। जब एक कारोबारी बंदे को गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ जाएं और उसे हर जगह पे अपनी फाइल आगे मूव कराने के लिए पैसे देना पड़े, तो वो फिर या तो जो प्रॉपर चैनल वाली बात है उसको फॉलो नहीं करेगा, और फिर वो अंडर हैंड तरीके से अहलकारों की मुट्ठी गर्म करके अपनी फाइल जो है मूव कराएगा, अप्रूवल लेगा, एनओसी लेगा अपने कारोबार के लिए। तो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बड़ा बुरा असर पड़ता है और इससे भी ब्रेन ड्रेन होता है। आपका बिजनेस जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाना, और उसका जब हम उसको फैसिलिटेट नहीं करते, ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं है, और एक जायज़ तरीके से एक बंदा जो है वो अपना कारोबार नहीं कर सकता, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, तो फिर वो डिसहार्ट होता है और वो इससे डिस्करेज होती हैं इकनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा इसमें डिसरिगार्ड फॉर मेरिट एंड जस्टिस है कि जब करप्शन होती है तो इट अल्टीमेटली इम्प्लाइज डिसरिगार्ड फॉर मेरिट एंड जस्टिस। एरोजन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक है, जब करप्शन होगी उससे आम पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को रिलीफ मिलेगा जो रिलीफ को पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ करप्शन। तो पब्लिक एट लार्ज जो कि पुअर है उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनको उनका जो ट्रस्ट है वो सिस्टम पे इरोड होता है। फिर जब लोगों के काम नहीं होते, लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, लोगों के मसले हल नहीं होते, तो इससे क्या होता है कि लोगों का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी एतबार उठ जाता है, और इससे क्या होता है कि लोग डेमोक्रेसी को भी एक अच्छा सिस्टम नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि जब सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, हालांकि डेमोक्रेसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन ए वे, बट इट इज द गवर्नेंस सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल, बट इल्ज़ाम किस पे आता है? डेमोक्रेसी के सिस्टम के ऊपर, और इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। फिर इससे ये होता है कि चूँकि जितने भी करप्शन करने वाले ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, या मैन इन अथॉरिटी हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हैं, वो अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास से होते हैं, और करप्शन देने वाला बंदे मोस्टली जो हैं वो ज़्यादातर पुअर क्लासेस से होते हैं। तो क्या होता है कि पैसा इन मोस्ट ऑफ द केसेस जा रहा होता है फ्रॉम पुअर टू द रिच। तो इससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी बढ़ती है, पॉवर्टी मज़ीद बढ़ती है। इवन अगर करप्शन इन एनी फॉर्म अगर हो रही है तो वो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को प्रमोट कर रही होती है। लेट्स से एक बंदे ने कारोबार किया, अगर वो इवन अमीर भी है और रिश्वत दे रहा है एक जायज़ काम के लिए, तो जो वो कारोबार करेगा वो उस अमाउंट को भी अपने कारोबार से पूरा करने की कोशिश करेगा जो उसने रिश्वत में दी होती है। इससे क्या होता है कि वो जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ करप्शन जो उसने दिए होते हैं, वो भी वो अपने कस्टमर से या अपने कंज्यूमर से पूरा करता है। इससे सोशल डिविजन्स डीपन होती हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा होती है। अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने पहले एक बैकग्राउंड बता दिया करप्शन के बारे में, उसके बारे में इस्लामिक टीचिंग बताई, फिर उसके पाकिस्तान में करप्शन क्या सूरत हाल उसके बारे में हमने अहाता किया। फिर हमने ये कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है पाकिस्तान के हवाले से, फिर हमने दुनिया की रैंकिंग बताई, फिर हमने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बताया। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि हाउ we can make the corruption elimination strategy as part of the governance system of Pakistan. सबसे पहले ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरीज बढ़ाएं, उनको मार्केट के बराबर करें, ताकि अगर वो इसके बाद भी करप्शन करें तो फिर उनके लिए सजाएं सख्त होनी चाहिए। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसी हिसाब से उनकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो डिस्क्रिप्शन है उनको कम से कम कर देना चाहिए। उन सिस्टम इतना ऑटो पे आप लगा दें कि एक बंदे का काम है, लेट्स से उसने डोमिसाइल बनाना है या कोई भी उसने डॉक्यूमेंट लेना है, तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि आफ्टर 7 डेज उसको वो चीज़ मिल जाएगी।
उसको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उसके घर उसको डिलीवर हो जाए। सर्विसेज का लेवल ये होना चाहिए और उसमें उस डिस्क्रिप्शन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की है वो खत्म कर देनी चाहिए या कम से कम करनी चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप आईटी बेस्ड इनिशिएटिव ले आएँ। आईटी बेस्ड इनिशिएटिव्स से ये होता है कि वो सबके लिए बराबर होते हैं, एक खास किस्म की एसओपी को फॉलो कर रहे होते हैं, ऑटो जनरेटेड होते हैं और वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को ऑन इक्वल फुटिंग प्रोसेस करते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है और आप उसको क्यूरी कर सकते हैं कि ये जो चीज़ बन के आ रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी सर्विस डिलीवरी, क्या वो प्रॉपर पैटर्न से आ रही है? क्या इसमें कोई दो नंबरी तो नहीं है? तो आईटी बेस्ड इनिशिएटिव्स जो हैं, वो भी करप्शन को खत्म कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द डिसीजन मेकिंग टायर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑन द पैटर्न ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें जैसे पब्लिक सेक्टर तरफ पे हम अपने डिसीजन मेकिंग टायर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि एक फाइल सेक्शन अफसर से मूव करती है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर स्पेशल सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर आखिर में सेक्रेटरी के पास जाती है फॉर अप्रूवल, फिर ये डाउन मार्क होती है, हुई नीचे आती है। तो डिसीजन मेकिंग टायर्स इतने ज़्यादा हैं कि हर स्टेप पे फाइल को या तो परस्यू करना पड़ता है, हर स्टेप पे आपको रेफरेंस देना पड़ता है, हर स्टेप पे आपको फाइल को मूव करना पड़ता है। यानी सिस्टम आपका ऑटो पे नहीं है क्योंकि डिसीजन मेकिंग टायर्स बहुत ज़्यादा हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो उसकी प्रोग्रेस स्लो होती है और काम बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं। तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनको सिंपलीफाई करने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग जो उसको प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। इसको जो है डेलीगेट करने की ज़रूरत है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स बहुत ज़्यादा अहम है। हर चीज़ की अप्रूवल अगर आप हायर लेवल पे जाके लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और इससे ये होगा कि जो आपकी हर अथॉरिटी है वो ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाती है। जब हर चीज़ की अप्रूवल हर फाइल ही उनकी तरफ जा रही है, फिर आपको ज़रूरत है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो जॉब्स हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ कर दें। लेट्स से आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर्स हैं, कोई भी रेवेन्यू कलेक्टर है, जैसे कोई टैक्स कलेक्टर है, तो उसके ऊपर आप उसको इंसेंटिवाइज़ से करें कि अगर आप इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो उसमें से इतनी परसेंटेज जो है वो आपकी अकाउंट में जाएगी। इससे क्या होगा कि करप्शन भी खत्म होगी, उसको इतनी हैंडसम सैलरी में के साथ उसका कमीशन होगा जो उसका लीगल कमीशन हो सकता है, उसको लीगल इंसेंटिव हो सकता है कि जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा उसमें से इंसेंटिव मिलेगा। इससे करप्शन का भी खात्मा होगा क्योंकि उसको अब अच्छी खासी अमाउंट मिल रही है जायज़ तरीके से और दूसरा उससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी और उससे हुकूमत को भी फ़ायदा होगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा काम हो रहा होगा। फिर हमें अपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इवन जो हमारे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म्स हैं, उनमें भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं और उनको वो भी डिस्क्रिशन के ऊपर बेस करते हैं। उसमें भी ये है कि जो पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा दी गई हैं और सम टाइम लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं बगैर एविडेंस के और फिर वो इवन बेगुनाह लोगों को भी इसमें कर लिया जाता है और फिर एक किस्म की एक माइंडसेट बना हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक लटकती हुई हैंगिंग स्वॉर्ड है, एक लटकती हुई तलवार है, किसी के ऊपर भी आ सकती है, इर्रिस्पेक्टिव कि कोई बंदा कितना कसूरवार है। यानी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म कोई इतना ऑथेंटिक नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी की ज़द में कोई बंदा आता है, तो उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि कोई बंदा भी अब उसको बिलीव नहीं करता। तो इसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। फिर हमें वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग से आपकी सर्विस डिलीवरी बेहतर होती है। उससे ये होता है कि आप जब ट्रेनिंग पे जाते हैं और अपने काम के अंदर महारत हासिल करते हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि आप डिलीवर करें और जब जितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, उतना ज़्यादा आप काम करने को पसंद करते हैं और जब आप काम करते हैं, तो उतना ज़्यादा आपका काम स्पीड से हो रहा होता है, आपकी डिलीवरी तेज़ हो जाती है। आप सर्विस डिलीवरी में फ़ास्ट हो जाते हैं और जब फ़ास्ट होते हैं, तो इससे करप्शन में कमी वाक़या होती है। फिर ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एमफिल, पीएचडी करने के बाद हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद वो बहुत सारी ऐसी सरकारी जॉब्स की तलाश में हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे हैं। लेट्स से दे बिकम अंडर एम्प्लॉयड
वो उन्हें पीएचडी किया होगा और कोई क्लास बहुत ऐसी जॉब कर रहे होंगे जिनमें वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसकी वजह क्या है कि हर बंदा गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहा है और स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आप गवर्नमेंट सर्विस जो है हर बंदे के लिए नहीं है। आप अपना कारोबार कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, आप स्किल के ऊपर काम करें और इससे ये होगा कि अभी जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट के पास इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको वो जॉब दे सके। जब सारे लोग गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि आप हमें जॉब्स दें, तो उससे क्या होता है कि जॉब्स होती नहीं है, उतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं होती। लामहवाला तौर पे स्टूडेंट्स में डिप्रेशन फैलता है, उनमें उनमें अनसर्टेनिटी आती है, वो बेकार हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। उन चाहिए ये कि वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट की तरफ देखें, वो अपना कारोबार शुरू करें, अपना स्किल के ऊपर काम करें और इंडिपेंडेंट अपने बिज़नेसेस करें, ताकि वो गवर्नमेंट के मोहताज ना रहें। फिर कुछ ऐसे हमारे लॉज़ हैं जिनकी मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जिनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लॉज़ मौजूद हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो होती है या ना होने के बराबर होती है। जैसा कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना। ये इतना बड़ा एक्ट है कि इसके ऊपर बाज़ औक़ात जो डिटरेंस है इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर जो लॉ बना हुआ है इल्लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा, हालाँकि उसको उसके तहत कोई किसी भी केस का 60 दिनों के अंदर फैसला होना ज़रूरी है। इसी तरह हरासमेंट टू वुमेन है और डिफेमेशन, इनके बारे में लॉज़ को सख्त करने की ज़रूरत है और जो एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि इससे भी लोगों के अंदर जब उनको लोगों को रिलीफ़ नहीं मिल रहा होता, उनका नुकसान हुआ होता है, फिर वो भी करप्शन की तरफ राग़िब होते हैं। मकसद ये है कि तमाम एस्पेक्ट्स में, तमाम एरियाज़ में लोगों को रिलीफ़ मिले और जब उनको स्पीडी रिलीफ़ मिलेगा या वो जो जस्टिस मिलेगा, तो उससे करप्शन में कमी वाक़या होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये इसने हेल्प किया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है, किसी ख़ास टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि उस पे बात की जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।